and give any 6 functions of the plasma proteins. Time कम है, क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो बस जल्दी जल्दी करने हैं. मैम एक बार रिपीट कर दे क्वेश्चन. Plasma proteins can name the plasma proteins. What are their normal level? Give 6 functions of the plasma proteins. Ma'am, albumin, globulins, and fibrinogens. Prothrombin and hemoglobin, ये सारे plasma proteins हैं. ठीक है? What is the normal level? What are the normal level? इसके आगे क्या क्वेश्चन बताया आपने? Functions बताने हैं plasma proteins से, कोई भी 6 functions. ठीक है मैम. ठीक है, मैम रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर. मैम albumin 3.5 to 5 क्या होते हैं? ओवरऑल इसका नॉर्मल लेवल प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्या होता है? क्या परसेंटेज? 6 to 8. नहीं, इट्स 55%. प्लाज्मा प्रोटीन्स का परसेंटेज नॉर्मल लेवल है 55% होते हैं ब्लड में. ठीक है. अच्छा, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जैसे फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन. मेंटेन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. Infection fighting. Maintain viscosity and blood pressure. Regulate And also ESR. act as transport proteins. Blood clotting process में immune system को help करते हैं और osmotic pressure को regulate करते हैं. Viscosity maintain करते हैं, blood pressure को. ESR की regulate करते हैं. Increase fibrinogen जो होता है वो it causes increase ESR. Acts as a buffer. They maintain acid-base balance. They help CO2 carriage by forming carboamino proteins. Transport of the substances. Act as a protein reserve. Thus provide nutrition during starvation and inadequate protein diet. और antibodies, for example, gamma globulins तो plasma protein है ना. Antibodies gamma globulins होते हैं, तो antibodies obviously वो आपकी they fight against so many diseases. ठीक है. तो अब क्या functions है? 6. Essential for blood clotting, for example fibrinogen and prothrombin blood clotting में essential होते हैं. Maintain colloid osmotic pressure, maintain viscosity and blood pressure, regulate ESR. Increase fibrinogen causes increase ESR. Acts as a buffer. Transport of the substances. Acts as a protein reserve. Antibodies, they combat disease causing organisms. ठीक है. अब ये आगे हाँ, maintain acid base balance. Acts as a buffer. अब किस बच्चे की मुझे, अच्छा मुकद्दस अब आप ही रिपीट कर लो. मुकद्दस है तुम्हारा? मुकद्दस फातिमा, आपका लास्ट टाइम नेट का इशू था, अब आप रिपीट कर दो. अभी भी नेट का इशू चल रहा है? मैम वो मीटिंग में नहीं है. वो मीटिंग में है, मेरे पार्टिसिपेंट्स में शो हो रही है. मीटिंग में है. मैम मैं कर दूं? आप कर दो. Ma'am, it helps in colloid osmotic pressures, maintain viscosity, acts as a protein reserve, increase fibrinogen, causes increase SCR and ESR. Maintains acid base balance. बस एक ब्लड क्लॉटिंग याद रख लो. कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है. Yes, ma'am. विस्कोसिटी और ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है. ESR को रेगुलेट करता है. एक्ट्स एज अ बफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में करता है. और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं दे कॉम्बैट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया है. नेक्स्ट हम करते हैं डिफाइन एंड क्लासिफाई इम्यूनिटी. अच्छा, व्हाट इज इम्यूनिटी? एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में मुझे बता दो, इम्यूनिटी क्या होती है? कहते हैं ना इम्यूनिटी ज्यादा है या कम है. व्हाट इज इम्यूनिटी? Ma'am, it is a process of to recognize What is defense system? particles. Ma'am, it is a natural protection system present in the body to fight against foreign pathogens. Foreign to protect harmful the body. pathogens, to recognize them and then reject them. अच्छा, इसमें आप लोग लिखो ability of human body to resist invading bacteria and toxin that tend to damage tissues and organs. ठीक है. Ability of a human body to resist invading bacteria and toxin that tend to damage tissues and organs. ठीक है. जी मैम. अच्छा, what
इसकी क्या है, टाइप्स क्या होती हैं? मैम इनेट Classify- इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। हाँ, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो इनबॉर्न या नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी होती है टू इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स, ठीक है। जैसे स्किन, स्टमक में हमारा एसिड है, ब्लड में डब्ल्यूबीसीज हैं और टिश्यूज में मैक्रोफेजेस हैं। ये हमारे नेचुरली प्रेजेंट है ना ऑलरेडी हर एक में। और जी एक्वायर्ड और मैम। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। और सेल मेडिएटेड क्या होती है? इट इज ड्यू टू एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज जैसे कि हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इट इज टेम्परेरी इम्यूनिटी व्हिच इज अचीव्ड बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज्ड टी सेल्स इनटू अ पर्सन। जैसे हम इंजेक्शन टेटनस का लगाते हैं, जब फॉर एग्जांपल कोई गिर जाते हैं तो टेटनस का इंजेक्शन लगवा देते हैं, तो उसमें इंजेक्शन ऑफ टेटनस आप लोग एग्जांपल दे देना, ठीक है। अब ये कौन Okay, रिपीट ma'am. करेगा? हमारा क्या था? इनेट इम्यूनिटी पढ़ा है। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हर बंदे में नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे स्किन, स्टमक में एसिड, ब्लड में डब्ल्यूबीसीज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टू टाइप्स हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल क्या है? एंटीबॉडीज के थ्रू, सेल मेडिएटेड थ्रू टी लिम्फोसाइट्स। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? जिसके अंदर हम एंटीबॉडीज से सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट जो ऑलरेडी हमारे पास जिनकी जो बनने हुए हैं उनको बॉडी में हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, जैसे कि इंजेक्शन ऑफ टेटनस आफ्टर द रोड साइड एक्सीडेंट, ठीक है। चलो जल्दी से रिपीट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। Yes, मैम रिपीट कर दूं? हाँ कर दो। मैं कर दूं? इनेट जी मतलब शुबाना, आप इम्यूनिटी, रिपीट करो। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड और एक्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जैसे हमारी स्किन है, स्टमक है, ब्लड है, ये मतलब इनके मैकेनिज्म इस तरह होते हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसमें दो टाइप्स हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और फिर है पैसिव इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी और सेंसिटाइज्ड टी सेल्स की वजह से होती है। ठीक है, अब मैं किसी और बच्चे से भी कहती हूँ। मुकद्दस, आप अभी तक नहीं आए हो, आप रिपीट करो एक बार। ये मारिया शफीक, आप कौन हो? आप रिपीट करो। मैं करती हूँ। मैम मैं आई। हफ्सा आप कर दो, लेकिन जो लोग बच्चे नहीं सुन रहे, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करो ना। मैं अगर पूछ रही हूँ किसी स्पेसिफिक बच्चे से तो वो क्यों नहीं है मेंटली प्रेजेंट? Ma'am, there are two types of immunity, innate and adaptive. Innate immunity is the immunity जिसके साथ we are born with, and adaptive immunity is immunity that develops throughout our life. ठीक है, आगे। मैम जी मैं ये पूछ रही थी कि इम्यूनिटी की दो टाइप्स नहीं है, तीन टाइप्स है। पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनिटी की टाइप्स है ना, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तो नहीं हाँ, आती ना। पैसिव इम्यूनिटी अलग है, एक्वायर्ड अलग है, इनेट अलग है। आपने जब हेडिंग्स बनानी है ना तो ऐसे बनानी है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड में और फर्दर पैसिव। टू इम्यूनिटीज की हेडिंग है, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और फिर पैसिव इम्यूनिटी। बस एक सिंपल याद रखो, इनेट जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो एक्टिव है उसके अंदर बॉडी आपकी एंटीबॉडीज और सेल वो टी लिम्फोसाइट्स बना रही है जो आपके प्रिवेंट कर रहे हैं आपको बैक्टीरिया से, जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे। और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो हम लोग बाहर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एंटीबॉडीज और सेंसिटिव टी लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास इतना मैम आगे। मुझे जी बोलो। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि पहले तो हमने मतलब एफएससी में जैसे पढ़ा था एक्टिव इम्यूनिटी, तो जो ऊपर वाली एक्वायर्ड और इनेट है ये एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव के टाइप्स हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने इनेट है, एक्वायर्ड जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड कर दो या एक्टिव इम्यूनिटी कर दो, बस नाम उसका एक्वायर्ड बोला है। ओके मैम। बेसिकली इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी में ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है, ठीक है। यस मैम, यस मैम, समझ आ गई है? यस मैम, आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं हम, व्हाट इज पर्परा? Sorry, ma'am. पर्परा क्या होता है? पर्प्यूरा मैं बता दूं, जी बोलो। प्लेटलेट्स काउंट को हम पर्परा कहते हैं ना मैम। मतलब स्पॉन्टेनियस जो हेमरेज बेनेथ ऑफ स्किन होता है ना, या फिर इंटरनल बेसिकली ऑर्गन। पर्प्यूरा ये होता है कि पर्प्यूरा में आपके हेमरेज हो रहा है। यस मैम।
इसमें क्या होता है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस हेमरेज बीनीथ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो जाता है हमारे। अक्सर पर्पल कलर के, जो अक्सर डिजीज या सिक पीपल होते हैं उनके पर्पल कलर के वो जो पड़े हुए होते हैं ना निशान, उनको हम ये कहते हैं बेसिक आर्म्स वाले आपके लोग नील पड़े होते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा होता है और फिर नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट नंबर, कि प्लेटलेट नहीं है आपका, वो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से आपका ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, और नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन, विटामिन सी डेफिशिएंसी, या फिर प्लेटलेट्स हैं लेकिन वो फंक्शनली डिफेक्टिव हैं। ठीक है, यस मैम। ये अब कोई रिपीट करे, व्हाट इज पर्प्यूरा और इसकी टाइप्स। Tendency of spontaneous hemorrhage beneath skin and mucous membrane and internal organ is called purpura. There इसके दो टाइप्स हैं। मैम इसके टाइप्स का नाम क्या है, थ्रोम्बोसिनोसाइट। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक और नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। यस मैम। जो थ्रोम्बोसाइटोसिनिक है उसमें ड्यू टू डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स होता है, और उसमें जो नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक है उसमें होता है ड्यू टू इन्फेक्शन और विटामिन डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड प्लेटलेट्स, डिफेक्टिव प्लेटलेट्स की वजह से। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बच्चों आवाज? जी मैम अब आ रही है। यस मैम आ रही है। अच्छा, अब पर्प्यूरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिक नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक आपने भी बताया है ना, उसके बाद आप मुझे बताओ Yes, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स क्या होते हैं। Ma'am, it helps in blood clotting. एटलीस्ट 6 फंक्शंस बताने हैं। मैम हैविंग नो न्यूक्लियस एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नहीं, फंक्शन तो नहीं है ना, ये तो एक उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा मैम, एंजाइम्स होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं अच्छा चलो मैं प्रोस्टेग्लैंड। बता रही हूँ, जल्दी से सुन लो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बस अब 11:15 तक है ना आप लोग का लेक्चर। जी मैम। यस मैम। Yes, ma'am. 25 मिनट्स हैं बस। अच्छा, एक आपने याद रखना है कि दे सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी, दे सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे रिपेयर डैमेज्ड वेस्कुलर वॉल, they have growth factors that promote growth and multiplication of vascular endothelial cells, vascular smooth muscle cells, and fibroblasts. Its surface has a glycoprotein coat that adheres it to the injured endothelial cells and exposed collagen fibers from deeper vessel wall. Its membrane has phospholipids that activates intrinsic system of blood clotting. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि वो एटीपी बनाते हैं फ्रॉम एडीपी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, वो वेसल जो डैमेज्ड वेसल वॉल है उसको रिपेयर करते हैं, उसकी मेम्ब्रेन पर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो इंट्रिंसिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और वो इंट्रिंसिक सिस्टम फर्दर क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, उसके वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कराते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स की, स्मूथ मसल सेल्स की एंड फाइब्रोब्लास्ट, जो फर्दर आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बेसिकली उनका मेन फंक्शन तो क्लॉटिंग है ना, लेकिन उसको करने के लिए उसके डिफरेंट फंक्शंस है ना, वो ऐसे ये सारे फंक्शन जो है ये आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, तो हमने वो फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, उसकी सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है जो एडहियर करता है टू द इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स एंड एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स फ्रॉम डीपर वेसल वॉल। ठीक है, तो क्या किया, एटीपी बनाया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाया, वेसल वॉल को रिपेयर किया, उसके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उन्होंने ग्रोथ प्रमोट किया, ग्रोथ इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, और उसके मेम्ब्रेन पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं इंट्रिंसिक सिस्टम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, और इसकी सरफेस
its surface has a glycoprotein coat that adheres it to the injured endothelial cells and exposed collagen fibers from deeper vessel wall. सबको समझ आई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट करते हैं। Yes, इसके ma'am. बाद ये अब आप लोग ध्यान से सुनते रहो, उसके बाद मैं किसी भी बच्चे से कह दूंगी रिपीट करो क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, व्हाट कैन Okay, हैपन आफ्टर मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? क्लोट्स बन जाते हैं डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं ना, हेमोलिसिस तो एक बहुत कॉमन है कि हेमोलिसिस हो जाता है। Coagulate. फेलियर भी हो जाता है। यस मैम, ब्लड रिजेक्शन हाँ, हो acute जाती है kidney जिसकी वजह से shutdown क्लोट्स होगा। बनने लग जाते हैं हमारी वेन्स के अंदर। प्रेसिपिटेट्स बन जाते अच्छा, हैं। इसकी वो है, मैं आप लोग को बताती हूँ, ये ध्यान से सुनो। डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जब हमारा मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से एक होता है एग्लूटिनेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आईजीजी एग्लूटिनिन है, उसके 2 बाइंडिंग साइट्स हैं और आईजीएम की कितनी होती हैं? 10। जो सिंगल एग्लूटिनिन होता है, इट कैन अटैच टू 2 to 10 आरबीसीज। तो क्या होते हैं, आरबीसीज आपस में एग्लूटिनेट हो जाते हैं, एग्लूटिनेशन हो जाती है उनकी। तो मेन इसका आपने याद रखना है कि एग्लूटिनेशन होती है इसके अंदर, कि आरबीसीज एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं। सिंगल एग्लूटिनिन क्या करते हैं, इट कैन अटैच टू 2 to 10 आरबीसीज sites and therefore causing RBCs to agglutinate. एक क्या करते हैं, ये हेमोलिसिस कराते हैं कि आरबीसीज का रप्चर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उसके अंदर से हीमोग्लोबिन जो होती है वो रिलीज हो जाती है। एक होता है जॉन्डिस। अब देखो जॉन्डिस कैसे होगा, ये हमारा एक हेमोलिसिस क्या था कि आरबीसीज का रप्चर हुआ, हेमोलिसिस बाहर, एचपी जो है वो बाहर आ गई। ठीक है, जब एचपी बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। एचपी के रिलीज हो गए ना आरबीसी हेमोलिसिस से, तो वो क्या करेगी, वो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी। अब ये जो एक्सेस एचबी है वो मैक्रोफेज उसको इनगल्फ कर लेंगे और वो उसको कन्वर्ट कर देंगे टू बिलिरुबिन, और जब लेवल ऑफ बिलिरुबिन ज्यादा होता है तो क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस क्या होता है कि आपका बिलिरुबिन ब्लड में ज्यादा हो गया है। और वो बिलिरुबिन कैसे ज्यादा हुआ है, आरबीसी थे ना हमारे पास, आरबीसी का रप्चर हुआ और रप्चर होके एचबी जो है वो बाहर निकल गया है। अब वो जो एचबी है वो हेप्टोग्लोबिन, क्योंकि एचपी बाइंडिंग प्रोटीन्स कौन से होते हैं, हेप्टोग्लोबिन होते हैं ना, हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया है। आगे एचपी जो है उसको अब मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ कर लिया है और क्या, बिलिरुबिन उसमें से रिलीज क्या हुआ, बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया है इसको। ठीक है, और जब ज्यादा बिलिरुबिन होता है तो क्या हो जाता है, जॉन्डिस। समझ आएगी ये जी बात? मैम जी। और एक्यूट किडनी शटडाउन होता है कि किडनी फेल्स टू वर्क सडनली आफ्टर मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हेमोलिसिस, एग्लूटिनेशन, जॉन्डिस और एक्यूट किडनी शटडाउन। समझ आई है? कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बता दो। ये आपको लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, उसके अंदर आप ये 4 हेडिंग्स लिख दो सबसे पहले, उसके बाद आप इन चारों को एक्सप्लेन कर दो। मैम एचपी बाइंड करेगा हेप्टोग्लोबिन से, फिर क्या होगा? मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर लेगा, एक्सेस एचपी होगी, इट इज engulfed by macrophages and macrophage will convert it to bilirubin. Increased level of bilirubin will cause jaundice. ओके, थैंक यू मैम। अच्छा ये बताओ, हाउ, ये एक क्वेश्चन आया हुआ एक दफा यूके, उसका पार्ट ए है कि हाउ डू न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स रीच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बी फेगोसाइटाइज्ड। कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे। How do neutrophils and monocytes reach the microorganisms to be phagocytized? मैम बाय ऑप्शनाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है ना, they are sticked with capillary wall. अब वो कैपिलरी वॉल के साथ जब स्टिक कर देते ना तो स्क्वीजिंग होती है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स की थ्रू द पोर्स इन द कैपिलरी वॉल। ठीक है, अब अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू ये आगे आगे मूव करते रहते हैं। वहां पर फेगोसाइटोसिस होती है जिसमें वो क्या करते हैं, दे इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन्स। इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। अब आगे बस आपने ये याद रखना है कि जो एक न्यूट्रोफिल है ना, इट कैन फेगोसिटाइज 5 to 20 बैक्टीरिया, और जो मैक्रोफेज है ना वो आपके 100 बैक्टीरिया तक फेगोसिटाइज कर सकता है। ठीक है,
बस बेसिकली बस ये है, आपने याद रखना है कि दोनों क्या करते हैं, वो कैपिलरी वॉल के साथ स्टिक कर जाएंगे थ्रू द पोर्स, उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, आगे अमीबॉइड मोशन के थ्रू उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपका वो ऑर्गेनिज्म है, वहां जाके इनगल्फ कर लेगा। एक न्यूट्रोफिल 5 से 10 को करेगा, मैक्रोफेज जो है वो अप टू 100 कर सकता है। ठीक हो गया, समझ आई है ये? Yes, ma'am. जी अच्छा, मैम। व्हाट इज ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ abnormal leukocytes in circulation due to cancerous mutation of the stem cells, myelogenous stem cells. ठीक है, इसका बस एक नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज ल्यूकीमिया। तो आपका जब ल्यूकोसाइट से कम एबनॉर्मली ज्यादा हो जाएगा ना, ड्यू टू कैंसर। कैंसर में क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स है ना, तो उसको हम बस ल्यूकीमिया यही कहते हैं कि जब डब्ल्यूबीसीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना ब्लड में, ड्यू टू कैंसरस म्यूटेशन ऑफ माइलोजेनस स्टेम सेल्स, तो हम ल्यूकीमिया इसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इवन जो ये क्वेश्चन है ना, प्लाज्मा प्रोटीन उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताएं, ये बहुत दफा रिपीट हुआ हुआ है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम आने चाहिए, उसका नॉर्मल लेवल आना चाहिए, उसके 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो मैंने अभी बताए थे, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, विस्कोसिटी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है ईएसआर को, एक्ट एज अ बफर, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस में हेल्प करता है, गामा ग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडीज वो कम्बैट डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये रिपीट आप में से कोई करे, बल्कि अभी ये बहुत दफा आया और ये आपके पेपर में आ सकता है दोबारा, ये टेस्ट पे भी आ सकता है। मैम इसके हमारे पास टाइप्स में होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोजिन्स, और इसके फंक्शंस में हमारे पास होता है कि ये कोलॉइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का होता है उसको मेंटेन करते हैं, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, क्लोटिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे हम डिफाइन हेमोस्टेसिस अभी हो गया था, उसके स्टेजेस बताओ, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ हेमोस्टेसिस? ये बहुत अच्छे से, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम है, ये हेमोस्टेसिस के वस्कुलर स्टेजेस। वही। वस्कुलर स्पैम वाला, हम्म और प्लेटलेट्स प्लग और ब्लड कोआगुलेशन और ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू टू क्लोज द होल इन वेसल्स। हम्म ठीक है, व्हाट इज एरिथ्रोपोइटिन? व्हाट इज एरिथ्रोपोइटिन? अच्छा, Yes, इसको ma'am. बस It's a आपने hormone which व्हाट is इज इट अ produced by the ग्लाइकोप्रोटीन? kidneys. व्हाट इसकी टाइप बतानी है फर्दर। इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन दैट इंक्रीजेस एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है? Formation of फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। red blood cells. और वो कैसे इंक्रीज करता है? बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फॉर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन that increases the formation of RBCs by stimulating the production of pro-erythroblast from hematopoietic stem cells. अच्छा, एक ये चीज याद रखनी है आपने, डेफिनेशन समझ आई है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है, डेफिनेशन ही बेसिकली मतलब एरिथ्रोपोइटिन क्या है। ग्लाइकोप्रोटीन आगे क्या करता है? एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज करवाता है बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ pro-erythroblast from hematopoietic stem cells. और 80 to 90% ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस करते हैं और बाकी लिवर और मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करता है। सो ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? किडनी में। तो मुझे बताया क्या बताया एरिथ्रोपोइटिन का? And glycoprotein that increases red blood cell production by stimulating the production of pro-erythroblast from hematopoietic cells. ओके, अच्छा, नेम 2 क्लिनिकल इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ ब्लड ग्रुप।
और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये बल्कि इसकी बड़ी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने दी थी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की, मुझे वो बच्चा बताएगा क्या था उसमें। इनफैक्ट मैंने भी बताया हुआ है आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का। अच्छा, एबीओ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे ब्लड ग्रुप के, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम लिख देना और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम लिख देना, ठीक है। इसके बाद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है? मैम, it is a anemia in which the maternal antibodies are transported into fetal red blood cells. ये डिजीज है fetus and newborn infants की which is characterized by the agglutination and hemolysis of RBCs due to incompatibility between child's and mother's RH factors. बेसिकली RH फैक्टर के इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है, और क्या होता है कि RBCs की इसके अंदर एग्लूटिनेशन हो जाती है और हेमोलिसिस होती है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है? मदर क्या होती थी, मैंने बताया था कि मदर इज ऑलवेज व्हाट? RH negative. और फादर इज ऑलवेज Positive. व्हाट? Child. RH positive. और बेबी Child. क्या होगा फिर? Positive. RH positive. पॉजिटिव होगा फ्रॉम फादर, ठीक है। सो क्या होगा उसके अंदर? मदर की एंटी मदर बॉडी हुआ था उसमें। मैक्रोफेजेस बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली मैक्रोफेजेस तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। हेमोलिसिस ये हुआ था ना कि आरबीसीज का रप्चर हो गया था, ठीक है, उसमें से एचबी रिलीज हो गई थी। एचबी जब रिलीज हो गई थी, बाइंड विद ये इसमें प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है, वो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई। अब हेप्टोग्लोबिन, उसको यस मैम। मैक्रोफेज ने इनगल्फ कर लिया और उस एचपी को उसने बिलिरुबिन में कन्वर्ट करा दिया। और जब बिलिरुबिन ज्यादा होती है, बेसिकली व्हाट इज जॉन्डिस? इंक्रीज बिलिरुबिन इन द ब्लड कॉजेज जॉन्डिस, ठीक है। ये बात आपने नहीं बोलनी। बिलिरुबिन ज्यादा होता है, और बिलिरुबिन क्या है? इसकी बाय प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन होती है तो बिलिरुबिन निकलता है। बिलिरुबिन ज्यादा होता है तो जॉन्डिस हो जाता है, सही है। यस मैम। यस मैम। तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट मैकेनिज्म यही है कि इसमें हिमोलिसिस होगी ना आरबीसीज की, तो इसमें आरबीसीज की जब हिमोलिसिस होगी तो एचबी रिलीज हो जाएगा। एचबी जो रिलीज होगा वो उसको मैक्रोफेज इनगल्फ कर लेगा और उसको ब्रेक डाउन करवा देगा। बिलिरुबिन ज्यादा होगी, बच्चे में जॉन्डिस हो जाएगा। इसकी जैसे इसका सिम्टम्स क्या होंगे? उसे एनीमिया होगा क्योंकि इसकी एचबी कम है, ठीक है। जॉन्डिस होगा क्योंकि इसकी एचबी की ब्रेकडाउन होकर बिलिरुबिन बन गया, जॉन्डिस हो गया। और उसकी लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट इसलिए होगी कि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपकी प्रोडक्शन जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन स्प्लीन में भी ज्यादा होगी और वो लिवर में भी ज्यादा होगी, इसलिए उसकी एनलार्जमेंट हो जाएगी क्योंकि कॉम्पेंसेट कर रहा होगा। ये उसके सिम्टम्स होंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट बताई थी मैंने आप लोग को इसकी, वो क्या थी? रिप्लेसमेंट ऑफ नियोनेट्स ब्लड विद आरएच नेगेटिव ब्लड। और मैंने एक ये चीज आप लोग को लास्ट में मेरे डिटेल में बताई थी कि हमने आरएच नेगेटिव से क्यों किया, ऑल्दो ही इज अ पॉजिटिव चाइल्ड, तो हमने उसमें आरएच नेगेटिव ब्लड क्यों दिया था? जल्दी से बता दो, टाइम इस मीटिंग के खत्म होने वाले हैं। तो अभी खैर नेक्स्ट मैं भी करवा रही हूँ आप लोग को, ये नेक्स्ट मुझे एंड पे बताना है। ये हम इसके क्या करते हैं, नियोनेट्स के ब्लड को रिप्लेस करते हैं विद आरएच नेगेटिव ब्लड, और उसको हम अच्छा एक चीज और याद रखनी है, जब बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ना बॉडी में, लाइक 20 mg से ज्यादा, तो वो उसके ना ब्रेन पे इफेक्ट करता है। कर्निक ट्रेस हम उसको कहते हैं कि ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो हमने उसका ना वो प्रिवेंट होने से बचाना है कि बिलिरुबिन को लेवल को बॉडी में कम रखना है। तो उसको प्रिवेंट फ्रॉम कर्निक ट्रेस बाय कीपिंग द लो लेवल ऑफ बिलिरुबिन, क्योंकि हाई लेवल होता है तो उसका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हम मदर को एक इंजेक्शन दे देते हैं, आरएचओ गैम इंजेक्शन, तो उसने मदर को हमने उससे ट्रीट करना होता है, ठीक है। ये लिख लो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के है क्या, मैकेनिज्म क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। यस मैम। क्या किया था ट्रीटमेंट में? हमने नियोनेट्स के ब्लड को रिप्लेस किया था विद आरएच नेगेटिव ब्लड, उसको कर्निक ट्रेस से प्रिवेंट किया था बाय कीपिंग द लो लेवल ऑफ बिलिरुबिन, और मदर को ट्रीट किया था विद द इंजेक्शन आरएचओ गैम इंजेक्शन। अच्छा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है। ये तो डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं,
ठीक है, और आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं। No, और ma'am, मुझे आप लोग RBCs non-nucleated होते हैं. हाँ, और वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं। Yes. और बताओ और क्या होता है डिफरेंस इनका? डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं, आरबीसी छोटे होते हैं। और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है, उनमें नहीं होती। आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है ना, और उसकी लाइफ स्पैन भी ज्यादा होती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि उसका मोर इन नंबर, लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। और उसका फंक्शन बता दो एक, कि उसका फंक्शन होता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस को, इट्स फंक्शन टू कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन कैरी करता है, CO2 कैरी करता है, और उनका डिफेंसिव फंक्शन होता है। आरबीसी का बफर फंक्शन होता है, मैंने बताया कि बफर फंक्शन में मेन रोल प्ले करता है, और उसका कोई फंक्शन नहीं होता। बस इतना बता देना, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि 4 मैकेनिज्म बताओ बाय व्हिच एंटीबॉडीज डायरेक्टली एक्ट ऑन इन्वेडिंग एजेंट्स। ये मैंने आप लोग को पहले भी याद कराया हुआ है, ये प्लान बताया था ना कि list 4 mechanisms by which antibodies directly act on the invading agents. PLAN, plan, पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोग को ये। मैम एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड लाइसिस। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑफ सोल्यूबल एंटीजन टिटेनस टॉक्सिन, जो कि एंटीबॉडी बिकम्स लार्ज हो जाती है, और इसमें कॉम्प्लेक्स बन जाता है सोलुबल एंटीजन और एंटीबॉडी का, दे बिकम लार्ज एंड इनसोलुबल एंड प्रेसिपिटेट्स। लाइसिस में पोटेंट एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को रप्चर कर देती है, पोटेंट एंटीबॉडीज रप्चर बैक्टीरिया। एग्लूटिनेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया विद एंटीजन आर बाउंड इनटू अ क्लम्प और क्लस्टर। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एंटीबॉडीज कवर एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिक साइट्स ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल। ठीक है, ये याद हो जाएगा सबको ये प्लान? जी मैम। अच्छा, अब एक फंक्शन बताओ, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस क्या होता है? अभी मैंने पढ़ाई है ना एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। मैम एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी होती है, और पैसिव में आउटर। बस सिंपल है कि ये बता दो कि इम्यूनिटी जो हम Source injection जिसमें हम की वजह से। प्रोडक्शन करवाते हैं एंटीबॉडीज की बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पांस टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि इम्यूनिटी एक्टिवेटेड बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज्ड टी सेल्स। ये मैंने बताया था ना, एक्टिव में हमारा हम एंटीबॉडीज और टी सेल्स बनते हैं, उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एक डिफरेंस तो आप लोगों ने ये लिख देना है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का। वो लिख लोगे वो डिफरेंस, कि उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाया था एंटीबॉडीज और टी सेल्स को, और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या किया था, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, क्या किया, इम्यूनिटी व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज by the immune system in response to the presence of an antigen. इसके अलावा डिफरेंस ये होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड होती है, वो बॉडी में रहती है। पैसिव जो है ना वो शॉर्ट टर्म है। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। जैसे कि इसके अंदर वैक्सीनेशन हम करवाते हैं पोलियो और कॉलरा के अगेंस्ट। उसके अंदर आपने बता देना कि इन्वॉल्व्स बोथ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। जैसे हम एंटीवेनोम की इंजेक्शन देते हैं टू ट्रीट स्नेक पॉइजन, वो हमारा पैसिव इम्यूनिटी की वो होता है, पैसिव इम्यूनिटी का फंक्शन है ये। ठीक है, ये कर लोगे एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी? जी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे बोलो। मैम अटेंडेंस आप ले लेंगे या मैं स्क्रीनशॉट मैंने ले लूं? अटेंडेंस ले ली हुई है, स्क्रीनशॉट में ले ओके चुके मैम। हैं। 49 आप लोग थे पहले, उसके बाद अभी आप 45 हो, तो वो मैं खुद ही लगा लूंगी आप लोग की देख के। ओके मैम। वो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है अटेंडेंस में, 5 मिनट रह गए, इसमें हम क्वेश्चन ही करेंगे बस। अच्छा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का आप लोगों ने ना ये बनाना है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। A 7-year-old boy presents to the physician with continuous profuse bleeding after
falling. His platelet count is 2,80,000 per millimeter cube and clotting time is 18 minutes. क्या कंडीशन है उससे? गिरा है वो या उसके लाइक वो गिरा है और उसका एक दांत टूट गया है, ठीक है, और उसकी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है और रुक नहीं रही है. उसका प्लेटलेट काउंट क्या है? 2,80,000 पर मिलीमीटर क्यूब और उसका क्लॉटिंग टाइम है 18 मिनट्स. क्या कंडीशन है उसे? मैम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है? अच्छा, अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है? मैम नॉर्मल से कम प्लेटलेट्स जब होते हैं तो वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वो होता तो है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना. व्हाट इज द कंडीशन दैट हैज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? मैम उसमें ब्लड क्लॉटिंग डिजीज नहीं बताओ होती. ना. बच्चा आया है आपके पास, उसे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है और वो नहीं रुक रही, लाइक उसका दांत निकाले, वो गिर गया, उसका दांत टूट गया, उसको ब्लीडिंग हो जा रही है, क्या डिजीज है उसे? मैम प्लेटलेट कम है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है इस वजह से. उसको हीमोफीलिया. आप लोगों ने हीमोफीलिया नहीं पढ़े अभी? जी मैम पढ़े हैं. 59 इसको अपने लिखना है, उसको हीमोफीलिया है, ठीक है. उसका क्लॉटिंग टाइम 18 मिनट्स है. लेट हो गया ना, और थ्रोम्बोसाइट उसको साथ में प्लेटलेट काउंट इसका 2,80,000 है. वो इतना भी कम नहीं है लेकिन है, ठीक है. तो उसको क्या होगा? हीमोफीलिया है उसको. नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है? 150,000 to 450,000. 150,000 to 450,000. तो उसका प्लेटलेट काउंट क्या कम है? नो मैम इट्स नॉट, मतलब ज्यादा कम नहीं है, सही है. ठीक है ना, वो तो ठीक में आ रहा है उसका प्लेटलेट काउंट. उसका जी, क्लॉटिंग बिल्कुल. टाइम ज्यादा है ना, तो उसको हीमोफीलिया है. अच्छा, हीमोफीलिया ए में क्या होता है? किस फैक्टर की